Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in computers, today we will learn chapter 4, that is using Excel as database. So, in our previous video, we have already learned about forms and how to enter data using the form. And I have also told you about sorting. Today we will continue with the filtering. So here you can see I have already opened the MS Excel worksheet before you and some data is entered. So you can see everything is before you. This data you can see on your screen. Okay. Now we will use firstly filter. What is filter? As I have told you, filter means we are only showing the essential things. जो चीज़ें हमें चाहिए, only those things will be shown and other things will be hidden. Okay. Only few things which we need to show, only those things will be shown and other things will be hidden. We can hide the non-required data. So how to do that? Firstly we need to go in the data tab. Okay, select the data, select this table, then go in the data tab, and here you have the option of filter. When you will click on this filter, you will see these arrows will be displayed before each column name. जो आपके column names हैं उनके आगे यहाँ पे arrow display होगा. And using these arrows, you can apply the filter. Suppose in this department field, I only want to see the department of production. So I can select only production from here, and other checkbox I can remove, then click on OK. And here you can see only production is being shown and other departments are hidden now. So this way we can filter our data and we can show only essential things. Now next is advanced filter. So what is advanced filter? Let us see. Firstly, I just undo this and I remove this filter just by clicking it again. Okay, so this filter is now removed. Now let us see what is advanced filter. Using the advanced filter, you can apply some criteria on this. कुछ आप इसमें criteria लगा सकते हैं and according to that specified criteria, you can filter your data. ठीक है, अपने data को आप कुछ criteria लगा के उसके according filter कर सकते हैं. And the most important thing of advanced filter is that you can also copy the filtered data. जो आपका filtered data है उसको आप कहीं और कहीं दूसरी शीट पे भी कॉपी करके रख सकते हैं या फिर इसी शीट में दूसरी जगह पे filtered data को डिस्प्ले कर सकते हैं. Okay, so how to use it? First of all, we need to enter some blank rows. Okay, I am inserting some blank rows here, and then what I will do, I will copy the column headings from here to here. And here in criteria I want salary should be 10,000. Means I only want to see the records of the persons whose salary is 10,000. I have given the criteria in this range. Okay, इस रेंज में आप अपना और भी क्राइटेरिया बता सकते हैं, जैसे सैलरी 10,000 या डेजिनेशन में आप कोई क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं. ओके, एंड दिस इज माय लिस्ट. ठीक है, एंड आई ऑल्सो वांट दैट जो हम क्राइटेरिया लगाने के बाद में हमारी जो न्यू टेबल आएगी वो मेरी यहाँ पे शो हो एंड दिस पोर्शन. ओके, आई वांट दैट. सो हाउ टू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सिलेक्ट दिस टेबल, देन गो इन एडवांस्ड एंड हियर यू विल सी एक्शन कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि आपको दूसरी जगह पे कॉपी करना है डेटा फिल्टर करने के बाद में. लिस्ट रेंज इज ऑलरेडी कमिंग हियर A4 to D13, A4 to D13. okay, criteria range is A1 to D2. okay, so put the cursor here and then you can click on the range this way. okay, so sheet 1 आपको यहाँ से remove करना पड़ेगा. sheet 2 should not be written since already it is clear. ठीक है, now copy. Where do you want to copy? Suppose you want to copy at this location. okay, now click on OK and you will see हमारा filtered data यहाँ पे show हो गया है. okay, so this way advanced feature can be used to copy your filtered data from one location to another and to apply the criteria on the filters. okay, so now we have next thing, that is data validation. data validation means हम कुछ rules यहाँ पे लगा सकते हैं कि हम यहाँ इस column के अंदर जो भी entries करेंगे वो किसी particular criteria के अंदर आएंगी. like मैंने यहाँ पे ये E वाला पूरा column ले लिया है and I am putting the data validation rule here.
Okay, so click on this data validation, and here in settings I want only whole number should be written in this column, and they should be between 0 to 100. So in allow is the whole number is selected, and data should be minimum value should be 0 and maximum value should be 100. Okay, and error alert will be shown if an error occurs, means if any invalid data is entered, then the message should be wrong and wrong input. ओके, मीन्स अगर हम ई वाले कॉलम में कुछ भी गलत एंट्री करेंगे देन हमारे पास एक मैसेज आएगा रॉन्ग इनपुट. नाउ लेट अस सी, कुछ हम गलत यहाँ पे एंटर करके देखते हैं मैसेज आता है या नहीं. सपोज आई राइट 101. okay, now I press enter and you can see message is coming wrong inputs. okay, so this way we can put some restrictions here. हम यहाँ पे कुछ restrictions लगा सकते हैं and only few values can be entered in the cells according to those restrictions. Now the next thing is subtotal. So what is subtotal? Let us see. We can also apply the subtotal. लाइक हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट जो है उसकी सैलरी अलग शो हो, प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट की सैलरी अलग से शो हो, सेल्स वाले डिपार्टमेंट की सैलरी अलग से शो हो, एंड जो हमारा स्टोर वाला डिपार्टमेंट है इसकी सैलरी अलग से शो हो. सो डैट कैन बी डन यूजिंग द सब टोटल. मीन्स आप यहाँ पे सब टोटल कर सकते हैं कुछ चीज़ों का. सो लेट्स डू डैट. सबसे पहले मैं यहाँ से ये क्राइटेरिया वाली चीज़ें हटा देती हूँ. देन आई विल अप्लाई दैट. लेट्स डिलीट देम. नाउ क्लिक ऑन द सब टोटल ऑप्शन. ठीक है, पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी होगी, देन इट विल बी सिलेक्टेड. सो आई सिलेक्ट दिस रेंज. सो नाउ आई विल यूज द सब टोटल. फर्स्टली आई नीड टू सिलेक्ट द रेंज, देन क्लिक ऑन द सब टोटल. ओके, हियर यू कैन सी इट एट ई चेंज इन, मीन्स आपको कहाँ पे चेंज करना है. सपोज मुझे क्या चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब टोटल चाहिए. सो आई विल टेक द डिपार्टमेंट. ओके, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे सब टोटल देखना है. तो सब टोटल किसका करना है, सैलरी का. मनी मीन्स हर डिपार्टमेंट की सैलरी मुझे सब में देखनी है. नाउ क्लिक ऑन द ओके एंड यू कैन सी हमारा यहाँ पे सब टोटल हो चुका है. अनिका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, उनकी सैलरी 20,000 है. टोटल डिपार्टमेंट टोटल हमारा जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है वो 20,000 जा रहा है. ऐसे ही हमारा ये मानस प्रिया अनुराधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, इनकी सैलरी ये है और टोटल कितना जा रहा है 35,000. तो इस तरह से हम सब टोटल फंक्शन को यूज़ करके अपने डेटा को एक समराइज्ड वे में देख सकते हैं. उसमें हमने सम वाला फंक्शन लगा दिया और हम सैलरी को एक समराइज तरीके से हर डिपार्टमेंट की सैलरी हम देख सकते हैं. ओके, सो हम ग्रुप कर सकते हैं अपने डेटा को यूजिंग द सब टोटल. Now next is pivot table. So what is pivot table? Pivot table is used for consolidating and summarizing your data. ठीक है, आप अपने डेटा को समराइज्ड वे में देख सकते हो. एक चीज़ और है, हमारी पिवट टेबल की खास बात ये फ्लेक्सिबल होती है. आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे उस तरीके से देख सकते हैं. ठीक है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना जैसा वर्क चाहे वैसा कर सकते हैं. तो कैसे यूज़ करते हैं पिवट टेबल को? फर्स्टली लेट्स अनडू दीज थिंग्स. सब टोटल रिमूव कर देती हूँ मैं यहाँ से. ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं. वी नीड टू क्लिक ऑन द सब टोटल एंड देन रिमूव ऑल. ओके, मैंने अनडू किया था, यहाँ से रिमूव ऑल करके भी आप यहाँ से सब टोटल को रिमूव कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज पिवट टेबल? आई जस्ट रिमूव द सब टोटल फर्स्टली. Now let us see what is pivot table. We need to go in the insert tab and click on the pivot table. Okay, here it is asking table range. So table range, suppose this range I take. Okay, so this range is selected here. Okay, now pivot table के बाद में हमारे पास में एक न्यू शीट बन के आती है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. तो वो शीट कहाँ पे आएगी, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट? हमारे पास दोनों ऑप्शन है. सपोज मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए अपना फिल्टर्ड डेटा, या अपना न्यू जो टेबल चाहिए वो न्यू वर्कशीट में चाहिए. सो क्लिक ऑन न्यू वर्कशीट एंड देन क्लिक ऑन ओके. ठीक है, न्यू वर्कशीट ओपन हो गई हमारी शीट 5 और यहाँ पे हमारे सामने एक पाइवट टेबल का टास्क पेन बन के आ गया जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रो लेबल्स बन जाए. ठीक है, मीन साइड में हमारे पास डिपार्टमेंट्स आए. ठीक है, सो टेक द डिपार्टमेंट, चेक इट एंड देन टेक इट टू द रो लेबल. ओके, next is I want designation. Designation should be in column labels.
डेजिनेशन मुझे कॉलम्स में देखना है, ठीक है। सो आई विल टेक इट डेजिनेशन, ये रो लेबल्स में चला गया है, मैं इसको वापस से कॉलम लेबल्स में रख देती हूँ। ओके, देखिए हमारे सामने आ चुका है। एंड सपोज सैलरी आई वांट टू सी इन वैल्यूज, take it and put in the values. Now you can see your summarized data is being shown here as per your requirement. ठीक है, हमने डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट रो लेवल बनाया था, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो 20,000 सैलरी लेते हैं। ठीक है, ग्रांड टोटल हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कितनी लेते हैं वो लोग। ठीक है, प्रोडक्शन में 10,000 लेते हैं मैनेजर। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर लेते हैं 10,000, 15,000 ये लोग लेते हैं, टोटल 35,000। इस तरह से पूरा डेटा आप अपने अकॉर्डिंग समराइज्ड वे में अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी टेबल को सेट कर सकते हो। पिवट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि हम इसको यूज़ करके अपनी टेबल को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आपने कोई चीज़ यहाँ रखी, आप उसको उठा के वापस इधर नेम में या रो लेबल्स में ले जा सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। और कोई चीज़ आपको नहीं देखनी है तो आप उसको वापस उठाकर वहीं पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पाइवट टेबल हमारी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसको यूज़ करके हम अपने डेटा को, अपने जो बहुत हमारा डेटा ज़्यादा होता है उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ रीड द चैप्टर योरसेल्फ and try to solve the exercises. This much for today. Thank you. Bye bye.